वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा भजन, इतना बड़े प्यार भरे भक्ति रस से भरपूर ऐसे भजन सुनने के बाद में सांख्य योग के ऊपर सोचना बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंज है। मगर हम सोचेंगे क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु हैं। जितना प्यार है उतना ही उसमें बुद्धि है, उतना ही विचार है। सो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट एवरी डायरेक्शन, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी. If somebody says that I want to develop an integrated personality, या लायन होता है, शेर होता है, अपने बच्चे को जबड़े में उठाता है, इधर उधर लेके जाता है, बिल्कुल इंजरी नहीं होती. और वही लायन जब शिकार करने के लिए निकलता है तो उसका पंजे से काट देता है दूसरे प्राणी. इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, हमारे में भी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए. कोई एक पर्सनालिटी मैं हमेशा क्षमा ही करूंगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. हमेशा क्षमा नहीं हो सकती, कभी कभी पनिशमेंट भी होनी चाहिए. समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे और ये जो श्लोक है वो उसी को बताने के लिए है कि कोई एक व्यक्ति अगर पूरी की पूरी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी ना कर सके तो वो कैसे होगा. पूरा का पूरा समाज नॉट एज ए वन पर्सन बट एज ए टुगेदर, हाउ दे कैन बी ए इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, एंड दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग हियर. इट्स वेरी बिग थिंकिंग. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चैंट. हम लोग चैंट करेंगे इस श्लोक को. बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग, एक्सट्रीमली कॉन्ट्राडिक्टिंग, एक्सट्रीमली डिबेटेड श्लोक in our whole history of Sanatana Dharma. Over 10,000 years, 15,000 years, not small. At the time of Buddha, at the time of Mahavir, it was debated. It was debated at that time. Forget about today's day. Forget about 1,000, 2,000, 5,000 years. More than that. Much more than that. This we are talking about something ancestral history. And that is what this sloka is. So let us do the chanting first and then we will go further on the understanding of last time we already went and then we are going to go further. So I will chant and then everybody can chant after me. Chant freely, no worries. Keep your heart open. We are talking about the mother, we are talking about our father. So no worry, no shame. Right? Chaturvarnya maya srushtam गुणा कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्. Vidya, the and here together, Vidya. It should be like Dya. If we talk like, if we speak the Sanskrit sloka like that, our body will automatically give a good result on it. Yeah, you know, when we speak about it. Anyway, so let us go further on this. So last time we talked about Chaturvarnya Maya system. Chaturvarnya Maya system. This is one of the most debated one, most contradicting, and it is completely mistaken as a presence of caste system, untouchability, up and down, hierarchy, name it. However, they wanted to represent it because there is no equivalent word of varna. And then we talked about how the word has come, what is the historical way, why the caste word has come, from where it has come. We also talked about that it is because the God is our creator and He is our father or mother, whatever way we are looking at the God. How a God can do the discrimination among its own kids. A God cannot discriminate. So when the father of the creator of the world, creator of the universe, as a normal father, if we do not discriminate between our kids, how come the creator of the world will discriminate? And because we believe in creator, we do not even discriminate between animals and humans.
Whereas the Abrahamic religion, they differentiate between animals and humans. Animals doesn't have soul. Animals are there for the use of the human being. That is what is the thought in Abrahamic religion. But in Sanatana Dharma, that's not there, because the animals are equally the creation of the God. So they are our brothers and sisters. Same for the trees, the plants, the fish, the birds, everybody. Everything which is created is all created by one God, and that is why they are all our brothers and sisters. पूरी दुनिया में भगवान को देखने की दृष्टि चराचर में चरा अचरा जो हिलता है और नहीं हिलता, दोनों के अंदर भगवान को देखने की दृष्टि सिर्फ सनातन धर्म देता है। और वही सनातन धर्म के ऊपर कास्ट सिस्टम करके हम लोग इनइक्वालिटी का ब्लेम बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये श्लोक समझना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने आगे देखा था कि ये क्यों, और इट इज बाय बर्थ। अगर वो बाय बर्थ है और इनइक्वालिटी है, अनटचेबिलिटी है, हम लोगों ने सत्यनारायण कथा की एग्जाम्पल ली थी, सब लोग करते हैं। स्त्री करता है, स्त्री करती है, पुरुष करते हैं, ग्वाल करते हैं, राजा करता है, बनिया करता है, लकड़हारा करता है, इक्वालिटी। राम सबरी के पैर खाते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने सब देखा था। देयर इज नो इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी। वाल्मीकि और व्यास के हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, कहीं भी अनटचेबिलिटी दिखती नहीं है। वो कहाँ से आई, ये कहाँ से ओरिजिन ऑफ वर्ड द कास्ट, द रूट इज इन द लैटिन वर्ड कास्टस, उसमें से हम लोगों ने देखा था ये लास्ट टाइम। और इसमें बाद में टू कंप्लीटली विन ए सोसाइटी, व्हाई दैट हैज बीन गिवन, व्हाई दैट हैज बीन इनकलकेटेड, व्हाई इट हैज बीन इम्पोस्टेड इन द सोसाइटी, इन द एशियन साउथ एशियन सोसाइटी। क्योंकि हम लोग साउथ इंडियन मतलब खाली इंडिया नहीं है, पूरी की पूरी जो हमारी जो सनातन धर्म था, इंडोनेशिया, जकार्ता, ऑल दोस प्लेसेस आल्सो वे फॉलोइंग द सेम थिंग। उसके अंदर ये कैसे ये विचार लाए गए, हाउ दिस थॉट्स वर इनकलकेटेड, इम्प्रिग्नेटेड, पोस्टेड, फोर्स्ड, ब्लेम्ड, कोई भी वर्ड, आप कितने सारे वर्ड है वो यूज कर लें। ऐसे किया, क्यों किया? बिकॉज यू हैव टू विन अ सोसाइटी। व्हेन यू हैव टू विन अ सोसाइटी, यू कैन नॉट विन इट ओनली बाय द स्वॉर्ड और द गन, यू कैन विन इट ओनली बाय द थॉट्स। एक गलत से विचार दे दो, और हम लोगों ने लास्ट टाइम वो पहले देखा था शैतान का सागरित, कैसे गलत विचार से उसने उसको वो जो किसान था उसका पूरा दिमाग घुमा दिया, उसके पूरे विचार घुमा दिया। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, टू कंप्लीटली विन ए सोसाइटी यू नीड टू प्रूव that it is disqualifying factors and propagate thoughts in the generations to come, change the education system। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था how they change the education system। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने स्टेज के ऊपर आके अपनी जनोई तोड़ दी, अपना जो सेक्रेट थ्रेड है वो तोड़ दिया, बोला ये गलत है, मैं नहीं मानता इसको, ये ऊंच नीच बताता है। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, क्यों? क्योंकि इसे एजुकेशन दे दिया, दिमाग घुमा दिया, नए जनरेशन ने मानने से इनकार कर दिया। ये हुआ ऐसा। To completely wipe the society, to completely wean the society, you give a wrong impression about their own thoughts. This is what happened, and then they will fight among themselves। वो खुद का बच्चा ही बोलेगा, आज भी हमारा होता ही ना, खुद का बच्चा ही बोलता है मैं नहीं मानता, मैं मंदिर क्यों जाऊं। खुद का ही बच्चा बोलता है ना, हम लोग देखते हैं ना, खाली कनाडा नहीं, इंडिया में भी खुद का ही बच्चा बोलता है मैं कि नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं नहीं मानता हूं तुम्हारे भगवान को, मंदिर में मूर्ति में थोड़ा भगवान होता है, वगैरह वगैरह, आर्ग्यूमेंट पर आर्ग्यूमेंट। श्रद्धा के ज्यादा बुद्धि, हम लोग बोलते हैं ना वो बुद्धिवादी, बुद्धिनिष्ठ, हम लोगों ने शब्द यूज किया था, ये काफी टाइम पहले हो गया था। वो बुद्धिवादी क्या होता है, बुद्धिनिष्ठ क्या होता है? वो बुद्धिवादी बन जाएगा, उसकी अकल चलाएगा मगर सामने आर्ग्यूमेंट करने के लिए चलाएगा, वो बुद्धिनिष्ठ नहीं बनेगा वो बच्चा। क्यों? क्योंकि उसके एजुकेशन सिस्टम बदल दी, एजुकेशन सिस्टम बदल दी। फिर वही बच्चा हमारे साथ झगड़ा करेगा, वो जो बाजू में बैठा है जिसने ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाई, हंसते हंसते देखेगा, देखो कैसे झगड़ रहे हैं। ऐसा होगा। दैट इज हाउ दे विल डू, बिकॉज दे हैव टू विन योर कल्चर, दे हैव टू विन ओवर, दे हैव टू पुश देयर कल्चर। दैट इज द रीजन। तो हम लोग उसको तो जाने दें, वो विनिंग तो छोड़ दें, हम लोग खुद समझे चतुर्वर्ण माया सिस्टम मतलब क्या है। पहले वर्ण शब्द कहां से आता है? व्हाट इज वर्ण? इन संस्कृत वर्ण मीन्स टू डिस्क्राइब इक्वालिटी, दैट इज वर्ण। अगर हम लोग को एक आदमी को कहें ये व्यक्ति श्वेत वर्ण का है, मतलब क्या? वो गोरा है ना,
वो काला नहीं है, वो गेहूं वर्ण नहीं है, वो सफेद वर्ण का है। इसलिए हम कहते हैं यह व्यक्ति श्वेत वर्ण का है। सो वर्ण वर्ड इज टू डिस्क्राइब ए क्वालिटी एंड नॉट एन हायरार्की। वर्ण वर्ड इज टू डिस्क्राइब ए क्वालिटी, ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉट टू डिस्क्राइब द हायरार्की। अगर हमारे सामने दो व्यक्ति है, एक गेहूं वर्ण का है, ब्राउनिश है, और एक व्हाइट कलर का है, थोड़ा फेयर है, तो हम क्या कहेंगे, ये श्वेत वर्ण का है, ये गेहूं वर्ण का है। उसमें हम लोग ऊंच नीच नहीं बता रहे हैं, हम लोग ये बता रहे हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। इट इज जस्ट टू डिस्क्राइब द क्वालिटी इन द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाट वी लास्ट टाइम सॉ। द 18th चैप्टर का हम लोगों ने देखा था, 42 to 44 श्लोक का। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए ब्राह्मण, ए क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र? व्हाट आर द क्वालिटीज they bring? And then there is a scientific evidence because of the process of rebirth. When I am reborn, I will select only आप कौन से रेस्टोरेंट में, अगर आपको खाना खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे? जो खाना आपको पसंद है, जो खाना आपने पहले खाया है, जो खाना आपको अच्छा लगता है, जो खाने का आपको चॉइस है। आप ऐसे कोई भी रेस्टोरेंट में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब सोल नया बर्थ लेता है तो बर्थ कौन सी जगह पे लेगा? वो ऐसी जगह पे लेगा जहां उसको उसकी क्वालिटी, उसको एक्सरसाइज, डेवलप एंड इंप्रूव द स्किल्स, वो जहां होगी वहां वो लेगा ना, तभी तो उसका रीबर्थ होगा। नहीं तो रीबर्थ कैसे होगा? द रीबर्थ इज द कॉज बिकॉज ऑफ द कर्म फल एंड द चॉइस। हम लोग सब यहाँ आए हैं, चॉइस से आए हैं। वी हैव ऑल टेकन ए चॉइस। मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ये इंद्रिय लेनी है। इसलिए तो हम बोलते हैं, अगर बहुत स्वीट का, किसी को अगर कोई स्वीट खाने का बहुत ये आता है, अरे मुझे मिठाई खानी है, मिठाई खानी है, उन्हें जन्म में मक्खी बन जाएगा। हाँ, वो गुण बनाएगा मिठाई के ऊपर, क्योंकि मुझे स्वीट ज़्यादा अच्छी लगती है। मक्खी को स्वीट सबसे ज़्यादा एंजॉय स्वीट को कौन करता है? मक्खी करती है। द फ्लाई एंजॉय द स्वीट मोस्ट, क्योंकि उसकी वो इंद्रिय सबसे ज़्यादा तेज है। एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा रख दो, 50 मीटर दूर से, 500 मीटर दूर से मधुमक्खी आ जाती है फूल के ऊपर, गूं करके 500 मीटर्स अवे। हाउ? बिकॉज उसका वो क्वालिटी है। तो हम लोगों ने हमारी जो रीबर्थ ली, तो रीबर्थ में वो क्वालिटी नहीं देखी रहेगी। मतलब वो क्वालिटी होती है बर्थ से। एक ही घर में जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बच्चा अलग, दूसरा बच्चा अलग। क्यों? रीबर्थ। सो द साइंस ऑफ रीबर्थ इज डायरेक्टली अप्लाइंग टू द वर्ण व्यवस्था। मेरी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी लेके मैं आया हूं। मैं ऐसे ही ब्लैंक पेपर लेके नहीं आया। आई हैव नॉट कम विद अ ब्लैंक पेपर व्हेन आई एम रिबॉर्न। आई हैव कम विद लोड्स ऑफ बैकपैक। दैट इज व्हाट इट इज। दैट इज व्हाट द होल पुनर्जन्म इज। एंड दोज बैकपैक्स, अगर मैं अच्छी ऐसी क्वालिटी लेके आया हूं और फिर मुझे बोला गया तुम दूसरा काम करो, तो कैसे चलेगा? मैं फिट नहीं होऊंगा। मछली को बोलो तुम आज से पेड़ के ऊपर रहना, कैसे रहेगी? नहीं रह सकती। इसलिए जन्म से क्वालिटी है। अच्छा, तो फिर क्या ट्रेनिंग से नहीं है? जरूर से है। क्यों नहीं है? हमारे में ऑलरेडी विश्वामित्र हैं, राजर्षि बन गए। इसलिए तो एक बार बात हुई थी हमारी, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस? विश्वामित्र को राजर्षि कहते हैं, राजर्षि विश्वामित्र। हाँ, ब्रह्मर्षि, देवर्षि नारद। तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनीवे, we can, it's a big one, so we will, but we have to focus, so we will focus on the varna. So varna means the quality. व्यक्ति के आंतरिक गुणों से जन्मा हुआ व्यक्ति, जो आंतरिक गुण लेके जन्मा हुआ है, वो जो अपने आंतरिक गुण लेके आता है, वो वर्ण है उसका। कोई बहादुर है बच्चा बचपन से, कोई बच्चा बचपन से शर्मिला है, कोई बच्चा डरपोक है, कोई बच्चा बहुत बुद्धिशाली है। तो कैसे होगा? एंड देन वी टॉक अबाउट द पुरुष सूक्त। वो अनटचेबिलिटी एंड इनइक्वालिटी की बात होती है ना, तो उसमें पुरुष सूक्त भी बहुत बार आता है। पुरुष सूक्त में है 13th श्लोक। पुरुष सूक्त कभी किसी ने पढ़ा होगा, लास्ट टाइम भी मैंने बोला, थोड़ा अगर होमवर्क करना है तो इंटरनेट में जाके देख लेना, नहीं देखा है तो ठीक है, फिर से देख लेना, रिक्वेस्ट है। पुरुष सूक्त में है, इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। इट प्रेजेंट्स द नेचर ऑफ पुरुष एज ए कॉस्मिक बीइंग। अगर पूरी दुनिया को, अगर एक पुरुष, कॉस्मिक दुनिया मतलब खाली ये नहीं, यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को अगर एक पुरुष, एक ह्यूमन बॉडी का अगर रूप दिया जाए तो उसमें क्या होगा?
ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहुराजन्यम कृतः उरु तद्दस्य यद्वेश्यम पद्मयागुम शूद्रो अजायत। अगर पूरी दुनिया में, समझ लो दुनिया में, यूनिवर्स की तो हमारी इतनी नहीं होती है इमेजिनेशन, पूरी दुनिया को अगर एक विश्व पुरुष माना जाए, ये भी बोलूंगा तो कोई बोलेंगे विश्व पुरुष तो स्त्री क्यों नहीं, बोलने वाले बहुत होते हैं, स्त्री क्यों नहीं, ऐसा तो उसको पुरुष माना जाए तो उसमें क्या है, ब्राह्मण मुखमासिता, ब्राह्मण को मुख कहा गया। अगर वो पुरुष है तो वो पुरुष में ब्राह्मण को मुख, वो पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मुखमासित बाहुराजन्य कृत, उसके जो हाथ है वो राजन्य क्षत्रिय है। उरु पेट, वो कौन है, वैश्य है। और पद्मयागुम शूद्रो अजायत, पद्म पैर, पैर शूद्र है। ये पढ़ने के बाद में कितने लोग, आपको पता है ये जो पुरुष होते हैं ना उसको प्रिंट करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, फाड़ने के लिए फाड़ देते हैं, बोलते हैं वी डू नॉट बिलीव इन इट। हाँ, आप चाहिए साउथ इंडिया में बहुत सारी जगह पर फाड़ देते हैं, उसको फाड़ने के लिए प्रिंट करते हैं। हाँ, टू इंसल्ट, दे इनवाइट यू टू इंसल्ट, ऐसे बोल सकते हो, दे इनवाइट यू टू इंसल्ट, फाड़ने के लिए उसको इनवाइट करते हैं। हाँ, जब फाड़ देते हैं, क्या हम नहीं मानते, तुम शूद्र को पैर मानते हो, नीचा मानते हो। हाँ, अगर उसका मतलब क्या है, शूद्र सेवा वाला, जो लोग दुनिया समाज में सेवा करते हैं वही तो समाज को चलाते हैं। पैर नहीं चलेगा तो क्या होगा, आपके पैर अगर कट जाएं तो आप क्या करोगे, चल नहीं सकोगे। उरु पेट है, वैश्य, पूरी सोसाइटी के अंदर जो मनी का मूवमेंट होती है, अर्थव्यवस्था होती है, वो कौन चलाता है, बिजनेस, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभाव। ब्राह्मण मुखमासिता, समाज के अंदर कौन से विचार जाने चाहिए, कौन सा नरिशमेंट जाना चाहिए, समाज को कौन सा विचार जाके समाज बढ़िया बनेगा, वो उसके मुख का जिम्मेदारी है। मुंह में कुछ भी जहर डाल देते हैं, नहीं डालते, मुंह के अंदर जहर नहीं डालते, गंदी चीज नहीं डालते। मुंह के अंदर खाने के टाइम पे अगर कंकर भी आ गया तू करके फेंक देता है, कंकर जबान निकाल देती है उसको। कैसे, ये ब्राह्मण का काम है, समाज के अंदर गलत विचार ना जाए, समाज आगे बढ़े, समाज स्वस्थ रहे, ये ब्राह्मण का काम है। और हाथ राजन्य, देखिए आपको पूरी बॉडी के ऊपर कहीं भी अगर आपको कुछ ये होता है, कुछ अटैक होता है, पैर में कांटा लग गया, क्या करते हैं, तुरंत हाथ उधर जाता है, कांटा खींच के लेके आता है। हाँ जी, स्पीड कम करूंगा, टॉपिक लंबा है ना, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। या आई विल डू द स्पीड स्लो। हाँ, या डेफिनेटली, थैंक यू। सो कभी भी अगर अगर पैर में कांटा लग गया तो हाथ क्या करता है, उधर जाता है, कांटा निकालता है। आंख में कुछ लग गया, हाथ जाता है, निकालता है। कृतम राजन्य कृतम, समाज के अंदर कोई भी डिफिकल्टी आ जाए, समाज के अंदर कोई तकलीफ आ जाए तो कौन काम करेगा, क्षत्रिय काम करेगा। इसलिए बाहुराजन्य, ये मीनिंग है क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, ये मीनिंग है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। तो ये जो चातुर्वर्ण माया सिस्टम, ये उसी को कनेक्ट करता है। दिस इज कनेक्टिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। देयर इज नो अपर और लोअर लेवल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड वर्ण। एंड देन वी गिव द एग्जांपल आल्सो ना, शेर के जैसा बहादुर है, वी आल्सो गिव इन आवर इवन नॉर्मल स्लैंग आल्सो, शेर के जैसा बहादुर है, या शेर के जैसा बहादुर है। हाँ, पवन पुत्र हनुमान, पवन के जैसे उड़ता है, जो उड़ कर जाता है, वो पवन पुत्र हनुमान। ऐसा ही हमने भगवान को भी क्वालिटी दे दी, पवन पुत्र हनुमान। शिवाकांत शांत, हाँ, शिव जी कैसे शांत है, क्वालिटीज। हमने भगवान को भी क्वालिटी दे दी, तो आदमी को तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो होगा ना। सोसाइटी कैसे बनेगी, सिस्टम कैसे चलेगी। ब्रेव, गाते हैं कोई बहन जी, कोकिल कंठी, कोयल के जैसा आवाज है, लता मंगेशकर कोकिल कंठी, हाँ, जिसका आवाज कोयल के जैसा है। उपमा दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि लता मंगेशकर है वो कोयल है, वैसे वर्ण उसी के लिए है, यही वर्ण का मीनिंग है, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और उसके हिसाब से उसका काम, और वो काम के हिसाब से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे में कोई ऊंच नीच नहीं है ना। पुराने जमाने में नाम रखते थे पोपटलाल, मीना बहन, कितनी समाज की अंदर कितनी भावना के साथ में जुड़ा हुआ, हाँ, आदमी का नाम रख दिया पोपटलाल, हाँ, तोता।
छोटा बच्चा है, बोल बोल के बहुत बोलता है, चुचू करता है, बोलता है इसका नाम रख दो पोपट। हाँ, ऐसा कितना प्यार एनिमल के साथ में, कितना प्यार। ये क्या ऊंच नीच है? सब जगह पर एक ही भगवान को देखने का जो विचार है, ये इसमें। नेम ऑफ द राइटर्स, तखल्लुस, तखल्लुस रखते हैं ना राइटर्स को, तखल्लुस नहीं रखते, अपना उपनाम कहते हैं जिसे, उपनाम रखते हैं, तखल्लुस रखते हैं। वो भी तो वही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसने ये रख दिया, ये नाम ये रख दिया, ऐसा नहीं। और दूसरी भी एक बात है, हमारे में बोलते हैं वो मत्स्य लोग थे, नाग थे, निषाद थे, वानर थे। तो क्या मतलब, क्या हो गया? वानर मतलब पूंछ वाले थे। वो तो एक आर्टिस्ट की कल्पना है कि वो आदमी को, उसने बंदर को जैसा आदमी बनाया और उसको पूंछ लगा दी। वानर मतलब क्या? नर, वानर। वाह का मतलब है क्या? नहीं है, पता नहीं। नर है क्या? नहीं है, ये पता नहीं, उसको कहते हैं वानर। जो एक जगह पर शांति से बैठा नहीं रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, जिसका कोई लक्ष्य स्थिर नहीं है, वो वानर। जिसका लक्ष्य स्थिर नहीं है, वो वानर। आज ये करो, कल वो करो, आज ये करो, कल वो करो। हाँ, आज ये पेड़ पर, कल दूसरे पेड़ पर। हाँ, ये फल अच्छा, वो फल अच्छा। बोलना नहीं चाहिए, मगर हम लोग अंदर ही सोच लेंगे कि हम लोग कितने वानर हैं। हाँ, ये अच्छा लगता है वो करो, वो अच्छा लगता है वो करो। ऐसे लोगों को गाइडेंस कैसे मिलेगा? रावण जैसे पापी को सामने लड़ने के लिए इतने शक्तिशाली हैं वाली और सुग्रीव। वाली 6 महीने तक रावण को ऐसे बगल में दबोच के घूम रहा था, इतना शक्तिशाली। मगर क्या हुआ? लड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। हाँ, वाली सुग्रीव के साथ, सुग्रीव वाली के साथ। हाँ, अंदर अंदर लड़ाई, फोकस नहीं है। वो लोगों को फोकस दिया राम ने उनको फोकस दिया। राम ने उनको बताया जीवन में क्या होना चाहिए। और जब ये होता है तो हनुमान के अंदर भी वीरता पैदा हो जाती है। हनुमान भी अपनी कैपेसिटी को पहचानते हैं। यही राम का काम है। राम का काम क्या है? हाँ, शबरी के बेर खाए। राम ने क्या क्या नहीं किया। केवट जो नावी लोग हैं, नेवी लोग बोलते हैं जिसको, जो नाविक है, इसलिए उसको मत्स्य लोग बोलते थे। मत्स्य मतलब पूंछ वाले ने, उसको क्या मछली की जैसे पूंछ नहीं थी। मत्स्य मतलब जो लोग नाव में रहता था, those people who are living at the shore of the ocean or the bank of the river, they are मत्स्य। वैसे नाग लोग वो ऐसी जगह पर रहते थे, उसका ट्रेंड ऐसा था, इसलिए उसको नाग कहते थे। असुर, राक्षस भी बुरा अच्छी की बात हम लोग इवैल्यूएशन नहीं किया। राक्षस मतलब क्या? रक्षामी, one who thinks that he is controlling and protecting himself and there is nothing like a god. The God does not protect me. There is nothing like God. I am the sole owner and I am the person who is controlling myself and protecting myself. ऐसे सोचने वाला राक्षस, रक्षामी, वो राक्षस। राक्षस मतलब क्या? 2 दांत ऐसे, 2 इधर सींग। वो तो आर्टिस्ट की कल्पना है दिखाने के लिए। आज भी राक्षस होते हैं ना, कार्टून में बच्चों के राक्षस नहीं आते? वो भी कैसे होते हैं? ऐसे होता है ना, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ पूंछ वाले, कुछ ऐसे ऐसे शार्पी, हाँ, स्कीन, ऐसे होते हैं ना। उसका मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। सुपर्णखा आई, कितनी सुंदर बन के आई, है ना। अगर वो राक्षस थी और ऐसी दिखती थी तो क्या वो राम को, लक्ष्मण को आती थी? वो ऐसे दांत वाली ऐसे ऐसी स्त्री आती थी तो क्या उसको कोई नहीं रहे? कितनी सुंदर बन के आई। हाँ, राक्षस का मतलब फिजिकली एंड विजुअली अगली ऐसा नहीं है, उसकी क्वालिटी वो है, उसको राक्षस कहते हैं। ऐसा है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं, इसको वर्ण, दैट इज व्हाई वर्ण। हाँ, अवतार, हमारे अवतार में हो गया। हाँ, कछुआ, हाँ, बटुक, परशुराम, उसका भी रिप्रेजेंटेशन है। उसको कछुआ क्यों बोला? हाँ, कुर्मावतार, मत्स्यावतार। एक कछुआ आया और कछुआ बैठ गया और समुद्र मंथन हो गया। कुछ प्रैक्टिकल तो दिखता नहीं है। जिसने भार उठाया, एक बाजू पे राक्षसी प्रवृत्ति चल रही है, एक बाजू में दैवी प्रवृत्ति चल रही है। दोनों मिलके खींच रहे हैं अपनी अपनी ओर, मगर उसमें से एक प्रोडक्टिव आउटपुट निकालना। हाँ, मुझे तो समुद्र मंथन इतना बढ़िया लगता है ना, उसके ऊपर एक अच्छा सा प्रवचन होना चाहिए, कम से कम एक छोटी सी बुक लिखी। हाँ, हमारी कंपनी में भी देखो, लेट अस टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल इन अवर कंपनी एवरी डे। There are good people and bad employees and good employees. If you are a manager, you have got good employees who are trying to do a productive work. There are some employees who are trying to do the destructive work.
Now you as a manager is supposed to balance. हाँ, कछुए के पीठ के ऊपर बैलेंस रख दिया है, और वो वजन कितना है, बहुत टेंशन है, बहुत वजन है, इसके लिए उसको पहाड़ बना गया, पहाड़, पहाड़ बनाया गया, उसने पीठ के ऊपर ले लिया मैनेजर ने, और फिर अच्छे एम्प्लॉय बुरे एम्प्लॉय खींच रहे, कभी उसमें से विष निकलेगा, कभी अमृत निकलेगा, और वो समाज के लिए यूज करो प्रोडक्टिवली आउटपुट। नहीं लगता है कि समुद्र मंथन है ये हमारी एवरीडे एप्लीकेशन है, रादर देन कहीं समुद्र में कुछ हो गया था, मंदराचल पर्वत को लेके आए, इधर घुमाया उधर घुमाया, वासुकीनाथ को लेके आए, क्या वासुकीनाथ, क्या हमारी इंटेलेक्चुअल तो सोचो, इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल, वी हैव टू थिंक अबाउट इट, थिंक लॉजिकली, दैट इज द मेथड ऑफ thinking about what is, how it is symbolically given in our Sanatana Dharma. That is how it is given in Sanatana Dharma. You have to understand. And that is how everything put a logic, try to understand. What will happen when we put it like that? Our faith will increase, our belief will increase, we will have more devotion, we will have more respect to our culture. That is how it is Samudra Manthan. And same for everything. We can keep on talking, but we have to focus on Chaturvarna, because this is the biggest debatable thing. So why the system? Why did our Sanatana Dharma people, why did our ancestors make a system? Why do they do this? So the systems are required, the structure of the society and its sustainment depends on the quality of the people it contains. The quality of the people in the society it contains finally decides the fate of the society. So you have to give proper skills, proper opportunity. We have to give proper skill to the and proper opportunity to the people, isn't it? Otherwise, the society cannot grow. If I have got a capacity to fight, to go to the war, but I am told that you become a programmer and you sit at the corner of the office and do the programming, what will happen? I will be a dissatisfied person and my qualities will not be equally used. That is the reason we have to give it. So a person who has got a quality, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, we have to give them opportunity to utilize their skills. And that is why there is a Varna Vyavastha. It's an arrangement, it's a system. That is why there is a Vyavastha. That is the reason why there is a Vyavastha. Yeah? Freedom of earning. And the biggest thing is independence. Swatantrata. आज की तारीख में देखो, बच्चे को पूछो तुझे क्या बनना है, कोई भी एक बच्चे को बोलो, उसको टेंशन है, उसको क्या, उसके पिताजी माँ को सबको टेंशन है, मेरा बच्चा क्या बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, कमाएगा क्या नहीं, कमाएगा तो क्या कमाएगा, कैसे सेटल होगा, ये चिंता थी ना, अभी है ना, वर्ण व्यवस्था में वो नहीं थी। सुधार का लड़का सुधार बनेगा, सोनी का लड़का सोनी बनेगा, वो बचपन से उसको मालूम है मेरा अर्निंग फिक्स है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्व, only thing I have to develop is the skill in more better way. अभी यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, कौन से, वोकेशनल गाइडेंस, तुमको कौन सा, तुम्हारे में क्वालिटी कौन सा अच्छा है, वो क्वालिटी के हिसाब से तुमको पढ़ाई का स्टाइल बताया जाएगा, एंड देन यू विल गो इनटू दैट कोर्स एंड यू विल बी सक्सीडिंग, वोकेशनल गाइडेंस है ना। सो बेसिकली व्हाट दे डू, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्वालिटीज इन यू। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया पुनर्जन्म के हिसाब से, यू ऑलरेडी ब्रिंग द क्वालिटीज, देयर मे बी सम मिसमैच हियर एंड देयर, इट्स ओके, देन देयर इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो इन इट। You go by masses when you design a system, you go by masses, not by classes. यहाँ ये समझिए घंट लगाना है, मंदिर के अंदर घंट लगाना है, ठीक है, अभी उसकी ऊंचाई कितनी रखनी है ना। अगर कोई ऐसा सोचे नहीं, अगर 6.5 फुट का आदमी आ गया उसको सिर के ऊपर लगेगा इसलिए उसको और ऊंचा रख दो, तो फिर जो आदमी शॉर्ट है वो घंट बजा नहीं सकेगा, है क्या नहीं, सिंपल सी बात है। और बहुत नीचा रख दिया, एक आदमी है 4 फुट का, उसके लिए रख दिया तो सबको टकराएंगे घंट को, तो क्या एवरेज कितना हाइट है, एवरेज हाइट के हिसाब से घंट को लगाओ। इतनी कॉमन सेंस, इतनी कॉमन सेंस, दैट इज हाउ यू डिजाइन द सिस्टम, इट इज गोइंग बाय masses, not by classes. So in the same way, Varna Vyavastha is for by masses. 95% of people are coming out of the tension of earning bread and butter in the life. Is it not a great way to do? That is what it is. ऐसा है, freedom, personal, social, economic. We can keep on telling,
Yeah, it's a long journey anyway. So personal, social level independence. सांस्कृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजकीय स्वतंत्रता, आध्यात्मिक स्वतंत्रता. There is big topics. There are big topics. Very big topics. We cannot cover them because Sanatana Dharma is very big, but we have to keep focused on Chaturvarna here. Freedom. एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रीडम का. फ्रीडम देखिए, इतनी सारी फ्रीडम बताई ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं. यही मेरा हो गया था, यही मेरे हमारे कुछ कलीग थे, उनके साथ में मेरी बात हो गई. स्त्री स्वतंत्रता की बात हो रही है. हाँ, स्त्री स्वतंत्रता बोलेंगे ना, इधर सब लोग हिलने लगते हैं. बोलना मत, प्रॉब्लम हो जाएगा, बहनें भड़क जाएगी, है ना, ऐसा होता है ना. स्त्री स्वतंत्रता, मगर कुछ वादा नहीं, व्यासपीठ पर से जिंदा बोल सकते हैं, क्योंकि सच बोल रहे हैं. स्त्री स्वतंत्रता की बात होती थी. तो यहाँ की स्त्री की स्वतंत्रता क्या है? यहाँ की नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप की स्त्री की स्वतंत्रता का बैरोमीटर क्या है? यू हैव गॉट योर ओन अकाउंट, है ना, यू हैव गॉट योर ओन बैंक अकाउंट, यू आर अलाउड टू डू द जॉब, है ना, यू आर अलाउड टू डू द करियर ऑफ योर सिलेक्शन. यू कैन सिलेक्ट योर करियर एंड यू कैन डू द जॉब, यू कैन अर्न मनी एंड यू कैन पुट दैट मनी इन योर ओन अकाउंट. You can buy your own car and you can drive and all that, है ना. इसी को तो इंडिपेंडेंस कहते हैं ना, to express your feelings. यही इंडिपेंडेंस कहते हैं ना इन जनरल. यही तो यहाँ की स्वतंत्रता है. तो हमारे एक थे, तो मैंने पूछा, ओके, when the lady becomes 90-year-old, and you go to No Frills, you go to any store and you say, oh, how will I do the grocery? I have to drive the car, है ना. I have to drive the car, I have to go in the car. At the age of 80, 85, that lady has to go. Then she has to pay from her account. है क्या नहीं? That is what the life is here. फिर मैंने उनको बोला मेरी माँ के बारे में. मेरी माँ थी, 55 साल की हो गई, बैंक अकाउंट कुछ नहीं है, पिताजी के साथ में जॉइंट नंबर है. मेरी माँ रास्ते पे निकलती थी, पैसा देने की जरूरत नहीं, सब लोग मौसी मौसी बुलाते थे. वो बोलते थे, अच्छा भैया चलो तुम इधर ये क्या 4 किलो मूंग, 4 किलो गेहूँ, 4 किलो ये हमारे घर पे भेज देना. अच्छा माँ जी. उसको उठाना नहीं पड़ता था. वो निकलती थी सोशलाइजिंग करने के लिए. मार्केट में सोशलाइजिंग करने के लिए निकलती थी. तो वो जाती थी मम्मी, मेरी माँ. इट वॉज मोर लाइक सोशलाइजिंग. सब लोग चाची आंटी करके बुलाते थे, मौसी मौसी करके बुलाते थे. उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, एक भी पैसा. वो उसको पता था पैसा मिल जाएगा. उसको कोई सामान नहीं उठाना पड़ता, उसके लिए कोई ये अकाउंट नहीं है. मगर घर में एक भी पैसा खर्चा करना हो तो सबसे पहले मेरी माँ को ही पूछा जाता था. मेरे पिताजी भी मेरी माँ को, अच्छा तुझे अच्छा लगा, फिर आगे चलते हैं. करके जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो कमा के आते थे, तो वो कमा के आते थे, पहले माँ के हाथ में पैसा रखते थे. माँ ये पैसा आया है, माँ बोलती थी अच्छा बेटा अकाउंट में रखते हैं. मैं खुद पैसा आता है पगार का, उसमें रखते थे. बाद में माँ को पूछना है, मुझे रेलवे का पास निकालना है, 100 रुपये मिलेगा. तो इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी किसकी ज्यादा है? किसकी लाइफ ज्यादा इंडिपेंडेंट है? किसकी लाइफ ज्यादा स्वतंत्र है? यहां की, जहां उसको अपने अकाउंट मैनेज करना पड़ता है, जहां उसको ड्राइव करके जाना पड़ता है. स्वतंत्रता का डेफिनेशन क्या है? आई एम नॉट अबाइडेड टू फॉलो सम एनी ऑफ द रूल. वो ज्यादा स्वतंत्रता है. स्वतंत्रता का डेफिनेशन क्या है? मैं मेरा मन में दिमाग में आए वो कर सकूं, वो स्वतंत्रता वो नहीं है, परतंत्रता है. यहां अभी हम सब लोग परतंत्र हैं. मुझे अगर चित्रकार बनना है, नहीं बन सकता. चित्रकार को यहाँ 1 रुपया पैसा नहीं मिलता है, तू भूखो मरेगा, तू डॉक्टर बन. मगर मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे कारपेंटरी पसंद है, कोई नहीं कमाता, ये करियर में जाना ही मत, है क्या नहीं? है ना. तो ये परतंत्रता नहीं हुई, ये क्या स्वतंत्रता हुई? स्वतंत्रता का डिफिनेशन, टू फाइंड द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू रीथिंक एंड रिडिफाइन, रीइन्वेंट द व्हील. इसको स्वतंत्रता कहते हैं. फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ लेडीज कहाँ ज्यादा है? इसका मतलब क्या उसको पढ़ाई नहीं करना? ऐसा नहीं था. हमारे में है मंडन मिश्रा की वाइफ. मंडन मिश्रा थे, बड़ी स्टोरी है लंबी, जिसका हो गया शास्त्रार्थ.
हमारे आदि शंकराचार्य के साथ में उसकी वाइफ थी, मंडन मिश्र जी की वाइफ उभया भारती। किसको इंटरेस्ट है होमवर्क करो थोड़ा, इंटरनेट पे पढ़ सको तो, बहुत सारी बाकी पढ़ते हैं तो थोड़ा ये भी होना चाहिए। इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पढ़ाना नहीं, वो पढ़ेगी, उसको काम नहीं करना पड़ेगा। अरे तू ज़्यादा कमा, आज की तारीख में बेटियों को क्या कहा जाता है, अरे तू कमा, तू पढ़, अच्छा तू इंडिपेंडेंट होगी, शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तू अपने आप की रक्षा कर सकेगी। अरे इतना नीचे गिर गया सोसाइटी, इतना नीचे गिर गया। बहनों को अपनी रक्षा खुद करनी पड़े, वो इंडिपेंडेंस हुई। बहनों को अगर अपनी रक्षा खुद करनी पड़े, इज इट इंडिपेंडेंस? वो स्वतंत्रता हो सकती है? वो स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मीनिंग समझना पड़ेगा हमें। एंड देन क्वालिटीज बाय बर्थ और क्वालिटीज बाय ट्रेनिंग और बाय बोथ, दैट इज अनदर टॉपिक। Some kids are born with the qualities. They are born sportsmen. Now if you are telling them, no, even if you are a sportsman, you become a programmer and sit at the corner of the cubicle. To allow the natural qualities of a person to come out is to educate. That is how the education should be. और अगर untouchability की बात है, if it is untouchability and hierarchy, then we have got examples. Krishna and Sudama. Krishna is a son of a king, is a prince, and Sudama is the son of a Brahmin. But they were both studying together in Sandipani Rishi ashram. They were both studying together. So where is the caste system here? There is no caste system. There is no up and down or untouchability. It is misunderstood and misexplained deliberately. That is what, in the social economics, a career at early age is better to understand. Here we talk about the kids in the grade 8, grade 10, grade 12. What do you want to be? I don't know. What do you want to be? I don't know. He is in the guessing still. At the age of 17, 18, he is still thinking and guessing. What is the best way for me to earn? How will I live my life? At the age of 18, 20, sometimes 25, 30 even. And then they change the career. They go to the school again. Instead of knowing about their qualities right in the beginning. That is what the Varna Vyavastha is. It is not caste system. Working in a career is by compulsion to earn. Even if he wants to become a good carpenter, a good sculpture guy, a good painter, but if that career is not giving them good money, they are compelled to take another career. How can we say that is a complete independence? It is not an independence, it is a compulsion. You are supposed to earn only money to feed yourself. And that is why you have to take the career of that. Is that an independent society? We are compelling the kid. You have to take these careers and not other careers. If somebody wants to live by giving a service to the society, volunteering, whole life, we have to think, we have to rethink what is the definition of independence. And because of these, the overall happiness in the society is important. When we can execute the independence in all the ways, the personal, the social, the financial, the political and spiritual. When we can exercise this independence in the society, then the society is truly independent. Otherwise it is not independent. We can say we are all independent, but we are not. We are controlled by economics. We are controlled by the pressure in various ways. That is what the Varna Vyavastha is taking care of. Because you are born in that, you are having your own job, you are having your own career, already decided. You are not worried about what you are going to earn. You have got a guaranteed job. That is how it is. Social economics, we are talking about social economics. Guaranteed bread to give a peaceful life. The life will be peaceful only when there is a guaranteed bread. Guaranteed way of living, supporting your life, of earning. And then you develop the great qualities in it, of course.
If I am supposed to be a carpenter, and if I am going to earn money by that, I'll try to become a best carpenter, isn't it? Because I like it, and I am going to develop into it. That will give me the psychological freedom also along with it. That is how it is. And education system was not different in Rishi Ashram, as we talked about Sandipani. Now we can say, oh, it was different. No, think about it. In the time of Ram, Ram talks to Jatayu, right? Jatayu means what? One who is flying. And we already talked, flying means the person is not flying. Ram is not talking to a vulture. He is talking to a people who are generally flying. Means those people who are staying on the mountains. That is Jatayu. That is why they were on the mountains, and he can see that the Sita was taken by Ravan. The people in the forest below cannot see. There are so many trees. If you go to Amazon, you can't see the sky. Why Jatayu could see? Because these are the people who are staying on the mountain. That is how the Jatayu. So Ram talks to Jatayu, Ram talks to Vanar, Ram talks to the Navik people, the Navy people. Ram talks to Sugriv, Nal Neel, the bear. How did they talk to each other if there is not a common language? How did they talk to each other? So that means there is an education system where everybody is learning the same language and the same details. That is how they will be able to talk. Think about it in India. If I go to Tamil Nadu and I don't know Tamil, what will happen? I am useless. I can't earn my bread and butter. I can't talk and communicate with the people. I can't survive that. Ram could go from north, Uttar Pradesh, Ayodhya, to way up to the south. He is even talking. Imagine Hanuman and Angad is talking to Ravan. Which language they must have been talking? Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, Sanskrit. How did they learn the language? Through education. That means there was a common education. There was no up and down. It is the same education for everyone. Education is not differentiated by the race. Education is not differentiated by what you are born with. Education is given in equal way to everyone. And that is what the Varna Vyavastha is. That is what the Varna Vyavastha. Otherwise, how they would have been talking to each other? Can you imagine that? Jatayu talked to Ram. How did Jatayu talk to Ram? You have to think. You have to imagine that. Present challenge of understanding oneself at early age, skills, likes, capacity. We don't. Father doesn't know how the son has got the best capacity, son or daughter. They may have come with another quality. So developing of higher skills and possibilities only when there is a natural inclination and training is combined. The natural inclination. What is the natural inclination? This is a sloka. Guna karma vibhagasya. जो स्वभाव से ही जिसका स्किल वो है. By natural inclination, they have got the skills. That is what is Varna. That is what the Varna Vyavastha was. It is not the caste system, which is being, too much discussed nowadays. And it is considered as one of the system which was a wrong system in South Asian. Varna Vyavastha is not caste system in one sentence. It was possible. So was it possible to change the profession? Yes, it was. It was. Vishwamitra become Rajarshi. There is possibility. Yeah. Chandragupta Maurya, recent history. Chandragupta Maurya was the son of a shepherd. He became a king. He was made a king. He was not Kshatriya by birth. So is there a possibility to change? Of course. Of course it is there. You exert that quality and you will be able to do that. But going by the masses, which is the system designing, as we talked about the example of the bell over here, what should be the height? It should be the general height of the people, so that 95% people will be able to ring the bell. That is what the Varna Vyavastha was. Now there are contradicting the stories of Eklavya. We'll talk about that. Contradicting Eklavya. Drona didn't allow him to study with him. Drona asked him his thumb. Very bad, very bad. है ना? बोलते हैं ना? So what we will do, that I think we are already in time, we'll talk about the contradiction, how the contradictions are given, how they are
given as an example and wrongly interpreted. That is what we are going to talk about next time, because this is very important topic. We have to understand how the Sanatana Dharma and how the Varna Vyavastha was there. It was not untouchability, it is not downtrodden, it is not somebody who is below the other people, there is no racism, there is no differentiation between humans, even forget about humans, even between humans and animals, there is no differentiation. Everybody has got one soul. Reverence for animals, reverence for trees, reverence for rivers. When that comes in, the whole environmental problem is resolved. We don't have to worry about environmental problem at all because we have got reverence in everything. That is what the Sanatana Dharma is. So what we will do is that it is already time now. We will stop it over here, and I have got some also announcement here after we complete this, and I will let you know about it in short. So I will do the announcement. Aarti ke baad? Okay, so there will be Aarti now. Okay, so there will be Aarti, and then there is some announcement. So I will, and then there is a prasadam is there. So I will complete this over now, and we will meet again next Sunday at 6:15 to 7 o'clock to understand the Srimad Bhagavad Gita again. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanauramardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Sri Guruve